Okay, Assalamu alaikum, everyone. Welcome to lecture 19. Uh, so today, basically, we will continue with our discussion on recurrent neural networks, and we will also discuss two of its variants, the gated recurrent units and the long short-term memory network. So that's the main agenda for today. In the last lecture, we had introduced the recurrent neural network, but we will discuss some of its extensions today in more detail. So regarding your project, project deliverable was due tonight. I had extended it till Thursday night, and the late due date is Friday night. So one thing that I would like to emphasize is this deliverable is like a continuation to your final deliverable. So if you do a good job on this, or if you don't do a good job on this, you still have to continue on this same track and incorporate the entire stuff in the final report. So if you have formulated or you have finished your methodology, then that will help you in implementing and getting some initial results for your final project report. So try to wrap it up as soon as possible and submit it by Thursday, but you will be continuing on the same track for the rest of your project. Okay, so you will also get another assignment, I think this week, which will be your last assignment, and hopefully we'll try to make it simple. And this assignment would be on the recurrent neural networks part that we are discussing right now. Okay, any questions so far? Yes, sir. Last lecture में हमने vanishing gradient problem को discuss किया था. उसकी थोड़ी सी समझ नहीं आई थी from Andrew Anchit's video भी, तो kindly उसको थोड़ा सा explain कर दें. क्योंकि उसी की base पे playlist TM और GRN पे आ रहे हैं शायद. Actually, जो हमने explanation उसकी दी थी ना, वो intuitive थी as well as थोड़ी सी abstract थी. तो the idea, I mean, we are not going into the mathematics of the vanishing gradient problem. Let's say if we did go into the mathematics of the vanishing gradient problem, तो आपको वो दूसरा perspective भी समझ आ जाएगा. हम ज़्यादा intuitive perspective या थोड़ा सा high level perspective समझने की कोशिश कर रहे हैं. So okay, I will start with that again today, and then move on to the next topic. Anyone else? Okay, so let me start my share. सर बस एक क्विज के हवाले से एक क्वेश्चन था. Excuse me, sir. Is there any question? कोई और शायद बोल रहा है? जी सर, क्विज के हवाले से एक क्वेश्चन था मेरा. जी जी. सर क्विज में एक क्वेश्चन था कि RNNs are able to easily handle long-term dependencies, true or false. तो सर उसका आंसर मैंने तो ट्रू लगाया है एज कंपेयर टू फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स. तो ठीक है. तो क्या ख्याल है सर आपका? नहीं, ठीक है आंसर. इट इज एबल टू हैंडल लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज. तो यही एक मेन मोटिवेशन थी RNN की. रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट 2-3 मोटिवेशंस फॉर RNN. ऑफ कोर्स इसमें वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम थोड़ा सा हैम्पर करता है, बट दिस इज स्टिल ट्रू. तो बाय द वे मैंने क्विज 5 का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया हुआ है उस पे LMS resources solution पे, तो you can look at that there.
सर क्विज पे कोई और आपका फीडबैक वाज, आई थिंक क्विज वाज रिलेटिवली इजी, बट उसका जो प्रोसेस ठीक था. वन ऑफ द कमेंट दैट आई गॉट फ्रॉम द अदर ग्रुप, अदर कोर्स दैट आई एम टीचिंग, इस केस में आप वापस नहीं जा सकते वंस यू हैव आंसर्ड ए क्वेश्चन. तो मे बी नेक्स्ट टाइम वो कोई मैं सेटिंग चेंज कर लूंगा इसके बारे में. यस सर, ये प्लीज इसको कंसिडर करें. वापस हाँ, जाने का वुड बी इम्पोर्टेंट. हाँ वो खैर कोई सेटिंग थी जो आई प्रॉब्ली मिस्ड, मुझे नहीं पता. मैंने वो स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड क्विज की सेटिंग बनी हुई थी वो यूज़ की, और उसको थोड़ा सा मैंने देखा था, मॉडिफाई किया, लेट्स से टाइम जैसे बनाया था मैंने. बट दे माइट बी सम अदर सेटिंग्स फॉर दैट, तो नेक्स्ट क्विज में इंशाल्लाह इसको देख लेंगे. हेलो सर. थैंक यू सर. क्विज नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रॉब्ली बाय द एंड ऑफ द वीक फिर मैं दे दूंगा उसी तरह का ही, रिलेटिवली सिंपल सा, so that you can at least continue following your discussion. ठीक है सर. आवाज आ रही? हेलो. आपकी आवाज कम आ रही है, कोई सर कोई बोल question? रहा है? जी सर मेरा एक क्वेश्चन है. आवाज आ रही है? जी, जरा थोड़ा सा बोलें ऊंचा. सर ये कि जो इन्होंने अभी क्वेश्चन किया है वो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज वाला, जी जी सर उसका मैंने फॉल्स इसलिए लगाया है कि इसी वजह से तो हम फिर वो लॉन्ग शर्ट LSTM वगैरह उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि RNN सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे उस चीज़ को. क्योंकि वो जो फर्स्ट वाला डाटा पॉइंट होता है उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो लास्ट तक जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर 100 यूनिट्स हैं तो 100 तक जाते हैं तो उसकी बहुत कम रह जाती है इम्पोर्टेंस. तो वो जो लॉन्ग टर्म वाली जो डिपेंडेंसी है उसका वो सही तरीके से हैंडल ही नहीं हो पाती. तो इसलिए हमने उसका फॉल्स लगाया है, क्योंकि वैनिशिंग ग्रेडियंट भी यही इशू है. ठीक है, ठीक है, मतलब ये पर्सपेक्टिव भी ठीक है. मतलब बिकॉज अभी मैंने यूजुअली मेरे जो क्वेश्चंस होते हैं आई अज्यूम कि यू डोंट नो द व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. तो अपेरेंटली आपको शायद पता था, तो इसलिए आपने थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हैं. तो बिकॉज आपने अभी हमने इंट्रोड्यूस तो करवा दिया. सो फार हमने फीड फॉरवर्ड नेटवर्क डिस्कस किए थे, उसमें लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज जो थी वो टिपिकली हैंडल करनी होती थी, तो हमको वी हैव टू मेक फिक्स विंडोज, और विंडोज जब फिक्स बनाते थे नेटवर्क बहुत मैसिव बन जाते थे. लेट्स से इफ यू वांट टू हैंडल लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज, तो उस सेंस में RNN आर बेटर. बट एज यू मेंशन्ड के RNN स्टिल हैज सम इश्यू व्हिच इज बीइंग हैंडल्ड बाय GRU एंड LSTM. सो चलें देख लेंगे इसको, आपको अकोमोडेट कर लेंगे एज लॉन्ग एज यू हैव सम रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर दैट. ये सर वो जो नोट्स हैं आपके जो नोट्स हैं उन्हीं के एंड पे लिखा हुआ है ना कि RNN से बाद में हमने जब LSTM इंट्रोड्यूस करवाया था कि वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आ जाती है. मुझे तो लगा कि उसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं आप कि वो वैनिशिंग ग्रेडियंट वगैरह चीज़ें याद हैं कि नहीं. तो आई मीन मुझे पहले इन चीज़ों का नहीं पता, मुझे वो नोट्स से ही वो मुझे सारा पता चला था. अच्छा ठीक है. सो इट मींस दैट कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगुअस है. ठीक है. सो एग्जैक्टली सर, और इसमें क्वेश्चन में एक कीवर्ड था कि RNN कैन इजीली हैंडल लॉन्ग टर्म. तो वो जो इजीली का yes, कीवर्ड था ना, दैट कंफ्यूज्ड sir. अस कि मतलब जनरली तो कर लेते हैं लेकिन इजीली लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी के लिए फिर आगे फर्दर वो यही. ग्रेडियंट वैनिशिंग प्रॉब्लम आ जाती है, और उसको फिर हमने फॉल्स इसलिए किया था. यस सर, यस सर. ठीक है. आई इजीली वाली थिंक चीज़ इजीली वाला वर्ड डाला हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली राइट नाउ. तो डाला हुआ है तो फिर तो आपकी बात सही ही लग रही है. लेकिन सर इजीली विद रिस्पेक्ट टू फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, तो फीड फॉरवर्ड में तो पॉसिबल ही नहीं है. तो हमने इजीली की उसी तरह से दूसरी तरह से इंटरप्रिटेशन चले ली थी. इसको फिर हम देख लेंगे. सो डोंट वरी टू मच. इसका मतलब है कि क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगुअस है. एम्बिगुअस क्वेश्चंस हो जाते हैं स्पेशली जब हम इस तरह के MCQs की बात करते हैं, बिकॉज वे यू कांट एक्सप्लेन स्टफ क्लियरली एंड यू जस्ट हैव टू पिक वन आंसर. वो इश्यूज हो सकता है. तो ठीक है, इसको फिर देख लेंगे ग्रेडिंग में. ठीक है सर, थैंक यू. ठीक है. Anything else? So let me start with the RNN equations. ठीक है. And then we'll move on to again slightly discuss the gradient, vanishing gradient issue, and then move on to the GRU and LSTM. So the equations for RNN are A T is equal to
basically some function g w a x x t plus w a into a t minus 1 plus b a, ठीक है. सो ये आपकी इक्वेशन है और जो आउटपुट की इक्वेशन है y t. अब दिस इज y प्राइम t कह लें बिकॉज ये नेटवर्क की आउटपुट है और जो एक्चुअल हमारे डेटा सेट में है वो y है. इसको मैं प्राइम डाल देता हूँ इधर. इज इक्वल टू f w y a t plus b y, ठीक है ना. So these are the governing equations for a recurrent neural network. So let me look at the dimensions of the parameters. और ये question आपको था भी उधर आपके quiz में. So let's say if you have 300 length vector for x, ठीक है, और recurrent layer is 100 units, ठीक है. तो फिर आपके पास जो w a x होगा इसका साइज होगा बेसिकली ओके. आई अब आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, अब यस सर. बीच में ये खत्म हो गया था. यस सर, आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया था. अच्छा, मेरी साइड से ही लगता हुआ है. ठीक है. तो रिकॉर्डिंग हो रही है? लेट मी चेक. जी सर. एक सेकंड. हो रही है सर. हो रही है ना? ठीक है. और स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, राइट? नहीं सर. ठीक है. तो शेयर स्क्रीन फिर से. ओके, स्क्रीन शेयर फिर वापस आ गया है. Okay, can you now see the screen as well as hear me? Yes, sir. ठीक है. So I wrote the equations for the standard recurrent neural network, and I was explaining the number of parameters required, and this was actually a quiz question. So if let's say x is 300 and hidden units are 100, so number of parameters are written here. ठीक है ना? WYA would be 3, because in the example there were 3 outputs, right? 3 into 100, this would be 300, and BY of course would be 3. So total number would be 40,403. ठीक है? So these are the number of parameters that are required in this network. Okay, I want to simplify the equation that are written above. This is also done by Andrew Ng in his slides. So, so I write them as A T is equal to G W A
इंटू एक्स के साथ आप ए लिखते हैं और कॉमा टी भी लिखते हैं टू इंश्योर के इसमें आपके पास टी का एक्स आ रहा है और ए भी इसमें ऐड कर दिया है प्लस बी ए। अब ये जो डब्ल्यू ए है दिस इज एक्चुअली नाउ डब्ल्यू ए combines WAA and WAX and X जो मैंने यहाँ लिखा है it combines X जो मैंने previously लिखा था and AT-1 तो हमने एक में इकट्ठा कर दिया पैरामीटर। So in this case जो WAX मेरे पास था वो 300/100 था और WAA जो था वो मेरे पास 100/100 था। तो ये WA जो होगा वो बनेगा आपके पास हमारे पास अब उसमें बायस के उसमें हमारे पास जो है इनपुट हमारे पास 300 ही रहेगा, ठीक है। तो नहीं सॉरी इनपुट अब 300 में हमारे पास इफ यू लुक एट एक्स में हमने ए भी ऐड कर दिया है, ठीक है ना। तो ए की डायमेंशन क्या है, ए की डायमेंशन 100 है। तो ये डब्ल्यू ए होगा दिस विल बी 400 इंटू 100, ठीक है। So we have concatenated WAA side by side to WAX. WAX यहाँ लेफ्ट पे है, which is 100/300 और पे 100/100 मैंने साइड पे इसके लगा दिया है। और मेरा जो X है पहले सिर्फ X होता तो उसमें मैंने A भी ऐड कर दिया। So I have now simplified equation for that. So is this clear? So we will write this as WA rather than WAA. तो इसका फायदा क्या होता है कि इसमें फिर आपकी जो इक्वेशन अब जो बन रही है ए टी, या मैं टी भी ना लिखूं, इट्स सिंपली देन जी डब्ल्यू एक्स प्लस बी। तो ये स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क की भी इक्वेशन यही होती थी, ठीक है ना। तो इन ए वे देन वी आर नॉट चेंजिंग द इक्वेशन मच। Okay, any questions? Okay, so this kind of simplifies the equation and we सर will जी सर एक क्वेश्चन है जी सर, ये अभी हमने WAX और WAA को सर हॉरिजॉन्टली अपेंड किया है। जी जी यस जी जी सर, तो फिर जो WAX के साथ सर वो XT था और WAA के साथ AT-1 था सर, उनको भी हमने अपेंड किया है यहाँ पे। हाँ जी जो वो जो करना वो पड़ेगा। बनाया पहले हमने, हमारे पास x था और AT-1 सेपरेट था। अब इन दोनों को भी हमने अपेंड कर दिया। x पहले एक वेक्टर बनाया जिसमें x ऊपर है और A-1 उसके नीचे है, ठीक है। और उसको भी हमने सिर्फ x ही कहा है, उसको x थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने नीचे A भी लिख दिया और T भी लिख दिया, ठीक है ना। तो वो ये x है और AT-1 है। Is this clear? आप इसको देखें ना तो रिजल्ट वही आएगा। हमने सिंपली मैट्रिक्स इकट्ठे कर लिए हैं, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आ रहा। इट्स जस्ट नोटेशनल सिंप्लिसिटी। पहले दो सेपरेट जगहों पे हमने वो WAA सेपरेट था, WAX सेपरेट था, हम दोनों को एक ही मैट्रिक्स में कर लिया और जो उसका वेक्टर x है वो भी हमने इकट्ठा कर दिया, x और a को इकट्ठा कर दिया, ओके ठीक है। ओके
Okay, coming to the vanishing gradient problem. The vanishing gradient problem, as we mentioned previously, was the problem of propagating the errors from a faraway layer, let's say the output layer, to a layer that is at the start of the network. The errors that occur at the end of the layer, and that's where we actually measure the error, और error हम measure नहीं कर रहे, वहां हमने measure किया, वो error आपने propagate करना है पीछे तक. तो जो एरर आपके पास एंड पे है वो आपने एंड के भी लेयर के नेट पैरामीटर्स हैं उधर पहले डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जितना बच जाएगा वो पिछले नेटवर्क में प्रोपेगेट होंगे, जितना एरर और बच गया और पीछे होंगे. सो एज सच द एरर वुड almost become negligible once you reach the start of the network. So that's the intuitive understanding of the vanishing gradient problem. From a more mathematical perspective, you can think of, so what we want to do is, let's say we want to find the derivative of the error dE with respect to the, let's say, parameter dW at the start of the network. ठीक है. अब ये जो मेरे पास error है, error तो end पे ही आएगा. It's a function of course W, but it has to go through the entire network. So we'll apply the chain rule DE divided by some intermediate output. Let's say हमारे पास 3 layers थे, तो A/D A, let's say 3. पहले हमने थर्ड लेयर के जो आउटपुट था उसके साथ हमने डेरिवेटिव लिया, फिर हमने D मल्टीप्लाई किया इसको A3 के साथ, इसको हमने फिर DA2 के साथ किया, तो DA2 को DA1 and then finally DA1 divided by DW. तो ये चेन रूल से हम वापस वहां तक जा रहे हैं DW तक. So the error, the derivatives that you're making multiple derivatives, and as we move back into the network, the derivative would move towards either the positive values or the negative values. मतलब पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, या नेगेटिव की तरफ स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा. एंड इफ यू नो कि जो हमारे पास फंक्शन है, मेन फंक्शन है एरर का, वो टेंजेंट हाइपरबोलिक है. सो टेंजेंट हाइपरबोलिक इज एस फंक्शन. तो ग्रेडियंट जब आपकी वैल्यू पॉजिटिव की तरफ बढ़ती जाएगी तो ग्रेडियंट 0 हो जाएगा. तो वो जो वैल्यू जो है वो 0, मतलब जो ग्रेडियंट जो है वो 0 हो जाएगा as we go back. Either if the value goes to the right or to the left, the gradient will become 0, and as such there will be no change. Remember, change is a function or directly related to the gradient. The stochastic gradient descent का equation मैंने last time भी लिखी थी. The new W is equal to the old W plus or minus eta into gradient. So if gradient is 0, there is not going to be any change. So if you have a long network, a deep network in general, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ RNN के लिए है. आपका स्टैंडर्ड फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में भी लेट्स से आपके पास thousands of layers हैं, वहां भी वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम होगा. बट रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में क्यों ये होता है? बिकॉज उसमें टाइम सीरीज से आपके पास लेयर्स बन रही हैं, एंड ऑफ कोर्स मल्टीपल टाइम्स कैन बी मैनी इन एनी एप्लीकेशन. फॉर एग्जांपल आपके पास सेंटेंस है तो उसमें 10 वर्ड्स हैं तो 10 लेयर्स डेफिनेटली बन रही हैं. 100 वर्ड्स हैं तो 100 लेयर्स बन रही है. 1000 वर्ड्स हैं तो 1000 लेयर्स बन रही हैं. Any questions so far? No, sir. अच्छा अच्छा, ठीक है.
So that is the general idea behind the vanishing gradient problem. The vanishing gradient problem would always occur whenever you have a deep network, and a recurrent neural network is essentially deep because of the time unrolling of the network. So each time becomes a separate layer in the network. Of course, parameters are shared, but at the previous time period, वही parameters update तो करने हैं आपने, तो वो update वहाँ जो हो रही है वो बहुत impact उसका कम हो जाएगा as the network becomes deeper. Okay, so now let's look at some architectural solution to the vanishing gradient problem. So I say architectural solution because these are slightly different architectures as compared to the standard recurrent neural network. There are some other solutions as well, maybe tweaking with the algorithm or the activation function, but those are not very successful in general. So let's start with the gated unit. So gated recurrent unit और इसका जो network बनता है उसको भी हम gated recurrent unit ही कहते हैं, but you can also call it a gated recurrent network. ठीक है, although more commonly it's known as GRU unit. ठीक है. And then I'll also mention the other one here as well, long short term memory network, LSTM. ठीक है. If you look at it from a historical perspective, LSTM पहले develop हुआ था. It was developed in the late 1990s, जब neural network wasn't very popular. Or it was a very important paper, but इतना कह लेंगे popularly वो idea practically use नहीं हुआ. GRU is much more recent, which is in the thing 2010s का है. But idea दोनों का same है, and in fact LSTM is more general than GRU. GRU is simpler. ठीक है? So we will start with the simpler and then look at the more general LSTM. ठीक है? Okay. So इसमें जो की आइडिया क्या है, हमने जो हमारे पास जो एक्टिवेशंस हैं, हमारे किसी भी इनिशियल लेयर्स की या इनिशियल टाइम स्टैम्प पे, वी वुड लाइक दोज एक्टिवेशंस टू बी रिटेन्ड. मेमोरी हम रखना चाहेंगे एज एट सम लेटर टाइम एज वेल. ठीक है. एंड दैट इज एसेंशियली मीनिंग के जो आपके पास एंड का जो एरर है वो इस मेमोरी पे इस वैल्यू पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा, वो वैल्यू आगे तक जा रही है. अदरवाइज आप स्टैंडर्ड RNN करते तो वो इम्पैक्ट उसका होता है, वो वैल्यू चेंज होके नेग्लिजिबल हो जाती. बट नाउ यूजिंग दीज आर्किटेक्चर्स वी कैन रिटेन दोज वैल्यूज टू लेटर पोजीशंस इन टाइम और लेटर लेयर्स इन द नेटवर्क. ठीक है. तो दिस इज द मेन आइडिया हियर. सो इसमें कुछ नोटेशन हम देखते हैं and then we will see how it works. So far we have talked about an activation A. Activation is actually the output of a layer. ठीक है ना, output of a unit. ये वेक्टर होगा तो ये आउटपुट ऑफ ए लेयर हो जाएगा, वेक्टर नहीं बनाएगा तो एक सिंगल यूनिट है. ठीक है ना. पहले भी जो हमने इक्वेशन में आई थी वो इफ इट वाज जनरली इट वुड बी ए वेक्टर, तो इसका मतलब है कि मल्टीपल यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट की एक वैल्यू है. सो वो तो हमारे पास रहेगी. इन एडिशन टू दैट वी आल्सो define a new value which we call the cell value C. So this is the memory cell value. ठीक है. So हर एक रिकरेंट यूनिट का, हर एक GRU जो है उसमें एक मेमोरी सेल है. So एक
आपका पूरा GRU का लेयर है, तो दिस वुड बी अ वेक्टर, C वुड बी अ वेक्टर. So for example, C would be of length 100, for example, if you have a GRU layer of 100 units. ठीक है. So एक तो पहली चीज ये है कि and we are using notation that are kind of consistent with LSTM. तो so इसमें जो फर्स्ट चीज ये है कि जो हमारे पास आउटपुट आती है नए सेल की, सेल वैल्यू आती है विच वी कॉल्ड कैंडिडेट C प्राइम मैं लिख रहा हूँ उसको कैंडिडेट C. So this is given by G, ठीक है, of W so remember the previous notation, हम यहाँ WA लिखते थे, right? तो इसको मैं अब WC लिखूंगा. एक्टिवेशन हमारी आउटपुट हो रही है A, तो हमने इसको WA किया. अब यहाँ हमारे पास आउटपुट हो रही है C, तो हमने इसको WC लिखा. उसके बाद फिर मेरा वही वाला X, ठीक है. X ऑफ कोर्स इसमें भी जो एक मैंने C लिखा और दूसरा T लिखा, प्लस BC. तो ये इक्वेशन वही है जो स्टैंडर्ड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की. आप इसको C को A से रिप्लेस कर दें तो ये वही इक्वेशन जो मैंने ऊपर लिखी है. ठीक है. Is this so far clear? Yes, sir. तो ये वही इक्वेशन है जो मैंने ऊपर लिखी थी. RN की सिर्फ मैंने A की बजाय C कर दिया. ठीक है. और WC वही WA के बराबर है. X जो था वो X है एट टाइम स्टैम्प T, एज वेल एज जो प्रीवियस टाइम स्टेप की जो C की वैल्यू है वो भी इसमें अपेंड हुई हुई है, जिसमें पहले A की वैल्यू अपेंड हुई हुई थी. बट इसमें अब डिफरेंस ये है, जो आउटपुट है दिस इज ए कैंडिडेट, इट्स ए C प्राइम. ठीक है. ओके. तो अब ये C प्राइम जो है, हम वी सेड दिस वाज ए कैंडिडेट. ठीक है. तो एक्चुअल C क्या होगा एट द नेक्स्ट टाइम स्टेप? So this is actually then obtained through a gating process. ठीक है. अब इसमें गेटिंग फंक्शन है गैमा. गैमा हम कहेंगे अपडेट गेट है मेरे पास. दिस मल्टीप्लाइज विद C प्राइम जो अभी निकाला आपने. ठीक है. प्लस 1 माइनस गैमा U इंटू जो प्रीवियस टाइम स्टेप की C की वैल्यू थी. तो ये C है, तो इसको मैं यहाँ मैं टाइम स्टेप लिख रहा हूँ T-1. बाकी जगहों पे फॉर सिंप्लिसिटी मैंने टाइम स्टेप नहीं लिखा. जहाँ नहीं लिखा तो इसका मतलब है वो T है. तो हमारे पास जो पहली वाली इक्वेशन थी ना, वो वही वाली इक्वेशन स्टैंडर्ड, बट उसके ऊपर हमने एक गेट लगा दिया, फिल्टर लगा दिया. अब वो फिल्टर क्या करता है, वो ये देखता है कि हमने ये नई वैल्यू कंप्यूट की है, इसको हमने रखना है या कितना इसको रखना है, या प्रीवियस वाली को रखना है. सो रिमेंबर गैमा जो है, गैमा इज एक्चुअली ए स्केलर, बट इफ यू हैव ए वेक्टर C, then this would be a scalar for each element of that vector. ठीक है. और ये हमने C जो कैंडिडेट ऊपर कैलकुलेट किया था, जो कैंडिडेट कंप्यूट किया तो उससे मल्टीप्लाई किया. एंड दिस गैमा U, ऑफ कोर्स ये मैं स्केलर के लिए लिख रहा हूं, बट इट कैन बी ए वेक्टर ऑफ साइज C ऑफ लेंथ, जितने भी रिकरेंट यूनिट्स हैं. दिस इज ए वैल्यू बिटवीन 0 and 1. ठीक है. सो लेट्स से मैं एज एन एग्जांपल कहता हूं कि ये गैमा मेरे पास 0 था और एक मैं रिकरेंट यूनिट की बात कर रहा हूं, एक की बात कर रहा हूं.
तो लेट्स से ये यूनिट 0 था, तो इसका पहली जो टर्म है गैमा मल्टीप्लाइड बाय सी प्राइम, इसका क्या मतलब होगा कि जो नई वैल्यू हमने निकाली है ऊपर इस टाइम स्टेप पे, उसको मैंने 0 कर दिया, और जो प्रीवियस वैल्यू 1 माइनस गैमा उसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ, सी टी माइनस 1 को सी टी को सिंपली कॉपी कर रहा हूँ. So the new input that I've gotten at time t, which is xt, is not making any impact. जो previous मेरे पास जो time step की input थी वो simply मैं आगे लेके जा रहा हूँ. So if gamma was 0, on the flip side, let's say if gamma was 1, तो इसका मतलब ये है कि previous जो time step से जो value आ रही है c t minus 1 उसको मैं 0 कर रहा हूँ और gamma को fully आगे लेके जा रहा हूँ. This would then be your standard recurrent network. If gamma u was 1, तो ये स्टैंडर्ड रिकरेंट नेटवर्क बन जाएगा जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं. इज दिस क्लियर? तो यहाँ कोई क्वेश्चन है? सर एक दफा ये चीज दोबारा रिपीट कर दें. फिर से बोलें. सर मैंने कहा एक बार ये दोबारा रिपीट कर दें. So the example that I'm saying is कि gamma is equal to 0, ठीक है? If you put it in the equation above, तो gamma is equal to 0 जो पहली टर्म थी वो 0 हो जाएगी, और पहली टर्म क्या थी जो अभी हमने इस टाइम स्टेप पे एक्टिवेशंस निकाली है. सी ऊपर आप इक्वेशन देखें, सी प्राइम वो इस टाइम स्टेप की एक्टिवेशन है, उसको मैंने 0 कर दिया है, और जो मेरी प्रीवियस टाइम स्टेप की एक्टिवेशन है वो 1 हो जाएगी, वो मेरी करंट टाइम स्टेप की एक्टिवेशन बन जाएगी. सो इन अदर वर्ड्स कंप्लीट मेमोरी मैं रिटेन कर रहा हूँ फ्रॉम माय प्रीवियस टाइम स्टेप, और जो करंट टाइम स्टेप पे जो एक्टिवेशन आई है उसको मैं कंप्लीटली डिस्कार्ड कर रहा हूँ. सो ऑन द फ्लिप साइड इफ गैमा इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसमें जो पहली टर्म थी वो पूरी रिटेन हो जाएगी और सेकंड टर्म जो है वो पूरी 0 हो जाएगी. So this would then become my standard RNN. ठीक है, स्टैंडर्ड RNN यही था ना? यस सर. तो ये स्टैंडर्ड RNN हो गया. तो बट इन जनरल जैसे मैंने ऊपर लिखा, गैमा इज लर्नड फ्रॉम माय डेटा, और मैं अभी लिखता हूँ वो इक्वेशन क्या है, एंड इट्स वैल्यू रेंज बिटवीन 0 and 1, और वो कंट्रोल कर रहा है कि किस तरह मैं इंफॉर्मेशन प्रीवियस टाइम स्टेप से आगे लेके जाऊंगा. ठीक है, irrespective of the errors that are being maintained or calculated in the neural network. Of course ये भी learned है तो ये error पे depend करता है. तो gamma u निकलेगा किस तरह? Gamma u is basically given by sigmoid of another network, you can say w. अब इसका मैं g से लिखूंगा, ठीक है, multiplied by x, वही input at the particular time step. ठीक है, टाइम स्टेप मैं लिख नहीं रहा अब एक्सप्लिसिटली, इसकी वही नोटेशन मैं यूज करूंगा जी एंड टी, ठीक है, प्लस बी जी. तो ये जो क्या चीज है, ये आप इसको आइसोलेट कर लेना, ये भी एक सेपरेट रिकरेंट यूनिट है. ठीक है ना, स्टैंडर्ड आरएनएन में यही क्वेश्चन थी ना, बट द डिफरेंस हियर नाउ इज स्लाइट डिफरेंस है. फर्स्ट के ये सिग्मॉइड ही होगा, हमने 0 और 1 के दरमियान वैल्यू लेनी है, और दूसरा ये है कि ये जो अंदर एक्सप्रेशन है ये हमने एलिमेंट वाइज करना है, मतलब हर एक एलिमेंट का हमने सिग्मॉइड लेना है, नॉट के हमने पूरा उसका समेशन करके एक वैल्यू निकाल लेनी है. तो प्रीवियसली रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में पूरा जो रिकरेंट नेटवर्क होता था वी गॉट इट वन वैल्यू.
So if this is the case, then it means that कि gamma u ये भी एक vector है of length equal to that of जो भी आपका था x नहीं था a/c. So जो recurrent layer है, जो GRU layer है, उसमें जितने भी units हैं उतनी ही elements होंगे gamma में. So let me give an example. Let's say मेरे पास एक 3 layer GRU है, ठीक है? तो मेरे पास जो gamma होगा, ये मैं सिर्फ G से लिख रहा हूँ, just to shorten my notation. This would be a vector. So let's say ये vector 0, 0 और 1 है, या 0.5 कर लेता हूँ, ठीक है? So this means कि जो third element है, पहले दो elements का gamma 0 है, और third element का gamma और third unit का gamma 0.5 है. और जो अब C निकला है, C भी आपकी C प्राइम की बात हो रही है. इसमें भी 3 वैल्यूज हैं, बिकॉज 3 यूनिट्स है ना आपके पास. लेट्स से ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था, ठीक है? अब ये एलिमेंट वाइज अप्लाई होगा, ठीक है? तो एलिमेंट वाइज अप्लाई होने का मतलब ये है कि हम जब पहले एलिमेंट की बात करेंगे, उस यूनिट की वैल्यू आउटपुट 1 थी C प्राइम, उसके साथ गैमा कौन सा मल्टीप्लाई होगा? 0 होगा. इसका मतलब कि वो एलिमेंट हम करंट हम डिस्कार्ड कर रहे हैं और प्रीवियस रिटेन कर रहे हैं. रिमेंबर ऊपर इक्वेशन क्या थी? C प्राइम इज इक्वल टू गैमा U इंटू C प्राइम प्लस 1 माइनस गैमा U इंटू C T माइनस 1, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि जो पहला एलिमेंट होगा विच इज 1, उसके साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है. इसका मतलब C प्राइम उसका हम रिटेन नहीं करेंगे, उसका C T माइनस 1 आ जाएगा. जो सेकंड एलिमेंट भी 0 है, वो 2 भी रिटेन नहीं होगा, वो भी प्रीवियस वैल्यू चल जाएगी आगे. जो थर्ड एलिमेंट है वो 0.5 है. हम कहेंगे कि आधी हमने करंट वैल्यू रखनी है, आधी प्रीवियस वाली का हमने आगे फॉरवर्ड कर देना है. ठीक है? सो एनी क्वेश्चंस हियर? उस्मान हैदर, आप कई दफा अंदर जाते हैं और बाहर जाते हैं, नेटवर्क के इश्यूज चल रहे हैं. So anyone has a question? No, sir. Okay. So gamma is also learned from the training data, but इसमें भी पैरामीटर WG है. WG कह लें या WU कह लें, नोटेशन आप दोनों यूज कर सकते हैं. मेरे ख्याल से WU करना चाहिए था बेहतर. ऊपर मैंने इसको U कर देता मैं, बिकॉज ठीक है. अब हमने नई मेमोरी सेल की वैल्यू निकाली थ्रू ए गेटिंग प्रोसेस. तो हमारे पास जो आउटपुट है देन ऑफ कोर्स इज C. A, the activation
is then actually equal to C. अब ये of course हम A भी यूज कर सकते थे, बट ये हमने दो डिफरेंट नोटेशन इसलिए यूज किए कि वो LSTM में ये भी डिफरेंट होती हैं, तो कंसिस्टेंट नोटेशन के लिए यहाँ हमने वही यूज की हुई है. तो दिस इज द स्टैंडर्ड और यू कैन से द बेसिक GRU नेटवर्क. अब इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें गेटिंग का डिफरेंस है, इसमें मेमोरी सेल का डिफरेंस है, और memory cell is the candidate for the output, the activation. अब वो कैंडिडेट हमने फिर गेटिंग से डिसाइड किया है कि हमने किस तरह करना है कंट्रोल, और गेटिंग में हमारे पास कंट्रोल है कि इस वाली को वैल्यू को हमने इंपॉर्टेंस देनी है या प्रीवियस वाली वैल्यू को देनी है. इफ फॉर मल्टीपल स्टेप्स हम करंट वाली को 0 दे दें तो इसका मतलब है कि बहुत दूर की वैल्यू हम आगे लेके जा सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल टाइम स्टेप लेट्स से C1 पे कोई वैल्यू थी, लेट्स से 0.23 थी. सो यू कैन रिटेन दिस फॉर ए लॉन्ग टाइम. C लेट्स से 20 तक भी यही रख सकते हैं 0.23. इफ gamma u is equal to 0, ठीक है, for this entire time stamp. समझ आई? अच्छा, I actually need a little bit of feedback from you guys. तो अभी तक क्या समझ आई और क्या नहीं समझ आई? Because before I move forward, तो it's important. Alright, so there are 17 people समर्स here, but सारे लगता है silent mode में. ठीक है. सर समझ में आ रहा है, थोड़ा जिसको खुद स्टडी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा. अच्छा, ठीक है. और इसकी स्टडी करने का ये इक्वेशंस ही हैं, मैं फिगर्स नहीं बना रहा. फिगर आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड और अननेसेसरी हैं. इक्वेशन से ही आपको समझ आ जाएगी. इसमें बस जो एक दो चीज़ें जो हैं जो मैं हाईलाइट बार बार कर रहा हूँ, एक तो ये है कि मेमोरी सेल ही हमारा आउटपुट है GRU में, बट लेटर ऑन LSTM में वो डिफरेंट हो सकता है. एक तो ये चीज़ है. दूसरा ये है कि जो मेमोरी सेल की कौन सी वैल्यू हम आउटपुट की तरफ, जो कैंडिडेट वैल्यू इस टाइम स्टेप पे जो जनरेट हुई है, वो हमने आगे लेके जानी कि नहीं जानी, वो हम एक गेट से या फिल्टर से कंट्रोल करते हैं, अपडेट फिल्टर जिसको कहते हैं. और वो भी हमने लर्न किया हुआ है, गैमा यू भी लर्न किया हुआ है. और गैमा यू इटसेल्फ इज लर्न थ्रू ए न्यूरल नेटवर्क, ए लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल. बाय द वे, स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क इज एसेंशियली ए लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल. ठीक है. और यहाँ तो पर्टिकुलरली वही है, बिकॉज ये सिग्मॉइड हम यूज कर रहे हैं, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है, 0-1 के दरमियान हमको वैल्यू चाहिए, और वो फिर हम मल्टीप्लाई करके वी गेट द candidate value for this particular cell at that particular time step. सर 0 और 1 के अगर दरमियान है तो सर ये रिग्रेशन नहीं होगी, रियल वैल्यूड आउटपुट ले रहे हैं. हाँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यही होती है ना, इसलिए तो उसको रिग्रेशन ही कहते हैं. लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ना, सिग्मॉइड फंक्शन यूज हो रहा है, इट्स गोइंग टू बी अ वैल्यू बिटवीन 0 and 1, बट फॉर if you are very certain that it's going to be a value that's very close to either 1 or very close to a 0, बीच में नहीं होगी. but uncertainty ज़्यादा है तो फिर बीच में होगी. ओके सर, थैंक यू. ओके, सो अब जैसे एक मैंने लास्ट टाइम लिखी थी, the cat who ate blah blah, बीच में बहुत was,
ठीक है ना। सो ये टाइम स्टेप 2 पे आ रहा है, लेट्स से C1 पे आ रहा है, तो इसकी इंफॉर्मेशन हम मे बी सम बिट ऑफ, जरूरी नहीं सारा लेयर हम रिटेन रखेंगे, मे बी सम, let's say second element of my layer is keeping information regarding singularity and polarity, plural or singular value of a noun, और वो ऑफ कोर्स हम ऑटोमेटिकली भी लर्न कर रहे हैं थ्रू दिस गेटिंग फंक्शन। वो फिर जो सी की जो वैल्यू होगी सेकंड टाइम स्टेप पे, वो हम रिटेन रखेंगे अंटिल वी गो टू वॉज। और जब वॉज पे जब पहुंचेंगे हम देखेंगे कि अच्छा ये बिट तो इसका लेट्स से चेंज नहीं हुआ, ये प्लूरल, ये सिंगुलर था, तो इसको भी मैं सिंगुलर ही रखूंगा। जब ये यहाँ से हम आगे निकल जाएंगे फिर हम इसको चेंज कर देंगे। अब ये किस तरह अपडेट हम करेंगे, मैनुअली नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली थ्रू द लर्निंग प्रोसेस ये खुद ही वो लर्न करेगा थ्रू द डेटा दैट वी हैव गिवन। गैमा खुद ही लर्न होगा ट्रेनिंग डेटा से। जैसे ये ट्रेनिंग हम डेटा देंगे तो वहां से ये खुद ही लर्न करेगा। ओके, सो ऑफ कोर्स इस न्यूरल नेटवर्क में फिर पैरामीटर्स कुछ बढ़ गए हैं हमारे पास। हमको गैमा भी ये भी लर्न करने की जरूरत पड़ रही है, और इसके अपने पैरामीटर्स हैं WU और BU। ठीक है, बाकी पैरामीटर्स ऑफ कोर्स सेम है जो स्टैंडर्ड RNN के साथ, बट ये दो नए पैरामीटर्स हैं, बट ये भी हमने उसी तरह ही थ्रू ए स्टैंडर्ड बैक प्रोपगेशन प्रोसेस एंड थ्रू ट्रेनिंग डेटा सेट वी आर एबल टू लर्न दिस। ठीक है, अब GRU के थोड़ी बहुत और वेरिएशंस भी हैं। आई थिंक एक जो थोड़ी सी कॉमन वेरिएशन है वो ये है कि जो हम निकालते हैं एक्टिवेशन एट ए गिवन टाइम स्टेप C प्राइम G ऑफ W C, ये मल्टीप्लाई हो रहा था X के साथ, XCT। ये था ना ओरिजिनल इक्वेशन। तो समटाइम्स हम X के आगे भी एक गेट लगा देते हैं, तो इस गेट को हम बेसिकली कहते हैं गैमा रेलेवेंस गेट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हम X और C को भी जो हमारे पास जो करंट इनपुट आ रही है उसको भी हम गेट करते हैं। हम कहते हैं हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस इनपुट एज कंपेयर टू द प्रीवियस इनपुट्स। जैसे वो मैंने एग्जांपल दी है कि इनपुट अब एक्चुअल वर्ड होगा, कैट होगा या वॉज होगा या कुछ होगा, तो हमने अब ये एक गेट इधर भी लगा दिया कि इसकी इंपॉर्टेंस को हमने किस तरह कंट्रोल करना है, एंड वी आल्सो गोइंग टू लर्न दिस इन द सेम वे। तो GR जो होगा दिस इज बेसिकली ए रेलेवेंस गेट, तो GR भी उसी तरह ही लर्न होगा थ्रू सिग्मॉइड ऑफ सम WR ऑफ X C and T प्लस BR। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पैरामीटर थोड़े से और बढ़ जाते हैं, बट नाउ दिस GRU हैज टू गेट्स, एक अपडेट गेट है एंड एक आपके पास रेलेवेंस गेट है। ठीक है, सो दीज आर द टू मोस्ट कॉमन वेरिएशंस ऑफ ए gated recurrent unit। तो आप राइट वे देख रहे हैं कि हमने फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी डाल दी है, इनपुट के ऊपर भी कंट्रोल लगा दिया है, आउटपुट के ऊपर भी कंट्रोल लगा दिया है, और वो कंट्रोल्स दोनों अडाप्टेबल हैं, लर्नेबल हैं, एंड दोज लर्नेबिलिटी आल्सो कम्स फ्रॉम द डेटा। ठीक है,
So just as an example, let's say हमारे पास sentiment classification की problem है. So I am going to the movies but found it terrible. But the experience was terrible. So let's say ये आपने सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन करनी है और फाइनल आउटपुट प्लस माइनस है पूरे सेंटेंस का, ठीक है, हर एक वर्ड का नहीं है, एंड पे आएगा आउटपुट प्लस या माइनस, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है. अब इसमें आप देखिए कि हर एक वर्ड डज नॉट कंट्रीब्यूट टू दैट पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटिमेंट. सो फॉर एग्जांपल आई इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग. तो आप ये रेलेवेंस जो आपका फिल्टर है GR जो है वो इस तरह की चीजें लर्न करेगा कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, M का भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, गोइंग में भी ऑल्सो कोई थोड़ा बहुत इम्पैक्ट नहीं है, 2 का भी कम ही होगा, दी का कम होगा, मूवी का शायद थोड़ा सा होगा, और टेरिबल का प्रॉब्ली सबसे ज्यादा होगा. तो इसको सबसे ज्यादा वेट देगा वो GR. और सिमिलरली जो आपका GU है, अपडेट सेल, मेमोरी सेल के जो अपडेट है वो इसकी इंफॉर्मेशन रखने की कोशिश करेगा, पिछली इंफॉर्मेशन वो फॉरगेट करता जाएगा, ठीक है, पिछली इंफॉर्मेशन वो फॉरगेट करता जाएगा. Okay, so any question here? No, sir. Okay, समझ now आ let's रही है quickly सर. move on to LSTM. LSTM, as I said, is a generalization of GRU. इसमें थोड़े से गेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है. पहली चीज़ तो ये है कि जो आपके पास मेमोरी सेल है कैंडिडेट, वो उसी तरह ही जनरेट हो रहा है जिस तरह पहले था. W C X C comma T plus B C, ये कैंडिडेट है, ठीक है. अब जो एक्चुअल है C, वो हमारे पास पहले तो अपडेट और नॉट अपडेट का था फिल्टर. अब यहाँ 2 सेपरेट फिल्टर्स यूज कर रहे हैं हम, G अपडेट, ठीक है, इनटू C प्राइम जो अभी हमने कंप्यूट किया मेमोरी सेल की वैल्यू कैंडिडेट की, प्लस G फॉरगेट प्रीवियस की, ठीक है. सो हमारे पास अब 2 गेट हैं और इंडिपेंडेंट, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई. पहले हमारे पास क्या था कि GU था और दूसरे के साथ 1 माइनस GU था. अब हमने एक फॉरगेट गेट एक और बना दिया कि पिछले वाले को हमने फॉरगेट कितना करना है उसका एक सेपरेट इंडिपेंडेंटली लर्न करें हम. अपडेट का भी हम लर्न इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, फॉरगेट भी इंडिपेंडेंटली लर्न कर रहे हैं, ठीक है. ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. एंड देन फाइनली जो आउटपुट है A, ये भी गेटेड है, J G O आउटपुट गेट भी है हमारे पास ऑफ C जो हमने ऊपर निकाला है, ठीक है. अब नाउ हियर C इज नॉट इक्वल टू A. रिमेंबर GRU में C was equal to A. Here we say that A is some gated value of C. और ऑफ कोर्स जितने भी ये 3 गेट्स हो गए, एक अपडेट गेट हुआ, एक आउटपुट गेट हुआ, एक फॉरगेट गेट हुआ, ये हमने उसी तरह ही लर्न करने हैं जिस तरह मैंने पहले लिखा था, यूजिंग अ सिग्मॉइड फंक्शन. एलिमेंट वाइज ये लर्न होगा फॉर ए वेक्टर. तो इसमें भी बाय द वे इस LSTM फ्रेमवर्क में भी आप रेलेवेंस गेट डाल सकते हैं. रिमेंबर जो C प्राइम निकाल रहे थे हम
कैंडिडेट निकाल रहे थे उसमें पीछे हमने GRU में एक GR डाल दिया था X से पहले, तो वो भी आप डाल सकते हैं इधर भी. So of course then you get 4 gates. So the long short-term memory network, as I mentioned earlier, was proposed in the late 1990s, 1997, if I'm not mistaken. So 1997, this was kind of a major development, but इतना ज़्यादा popular नहीं हुआ था उस दौर में because neural networks wasn't popular during that time period. And the GRU, of course, is a simplified version of the LSTM. This was proposed, I think, in the 2000, maybe 13, I think. अब जितने भी ये पैरामीटर्स आपको नजर आ रहे हैं, मुझे डज सीम के ये कॉम्प्लेक्स है, इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स हैं. इक्वेशंस आप गौर में देखें तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, पर दूसरी चीज़ ये है कि आपको इम्प्लीमेंटेशन में कोई ख़ास इतना करना नहीं पड़ेगा. आप लेट्स से कोई भी टूल किट यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से आप क्या कहते हैं टेंसर फ्लो यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर लेट्स से केरास का अपर उसके ऊपर आप कह लें कि रैपर यूज़ कर रहे हैं, तो यू सिंपली हैव टू जॉइन बिल्डिंग ब्लॉक्स, connect building blocks, and your network will be built, and automatically from data ये सारे parameter W's आपके calculate हो जाएंगे. आपको खुद ही करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी. ट्रेनिंग डेटा ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा चाहिए होगा. ये नेक्स्ट टाइम मैं डिस्कस करूंगा, द इशू ऑफ ओवरफिटिंग. आई विल डिस्कस दिस नेक्स्ट टाइम. Okay, questions? Okay. I can move forward as well, but मेरे ख्याल से I will probably stop because overall थोड़ा सा content हम थोड़ा सा reduce कर रहा हूँ मैं आप सबके लिए इस semester. तो think I will probably stop next lecture में we will discuss overfitting in general and some solutions for handling overfitting in neural networks. And then if we have time, we will continue on to sequence models, which are also recurrent models, but slight difference है उसमें. We'll talk about that. So any questions? So any questions? No, sir. On average हमारे पास 18 लोग होते हैं. I think I've noticed for the past 3-4 lectures 16, 17, 18, 19 लोग होते हैं. तो जो बाकी हैं वो बिल्कुल ही अटेंड नहीं करते या काइंड ऑफ वो कर रहे हैं बट समटाइम्स वो होते हैं दूसरे नहीं होते. तो इस तरह का कोई एनालिसिस किसी ने किया हुआ? हमाद, आपने देखा है कभी कि हमारे सर ज्यादातर तो वही लोग हैं जो रेगुलर हैं. रेगुलर हैं? अच्छा, तो बाकी जो 10 तकरीबन लोग हैं, 8-10 लोग हैं, वो फिर कंटिन्यूसली फिर नहीं ज्वाइन कर रहे. एंड वी कैन अज्यूम कि आइदर नेटवर्क का इशू है या वैसे ही वो पढ़ाकू नहीं है. यस और नो? मेल कर देते हैं सर उनको. हाँ कर दें महज, आप एक छोटी सी ईमेल कर दें, बट जस्ट टू चेक के इश्यूज क्या है, नेटवर्क इश्यूज, बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल कि इस डिलीवरी प्रोसेस में कंसर्न्स क्या हैं. ठीक है, कुछ लोगों की मर्जी होती है कि वो नहीं अटेंड करते, बट लेट्स से इफ दे आर नॉट अटेंडिंग बिकॉज ऑफ सम कंसर्न, तो वी लाइक टू नो. ठीक है सर. चलिए मैं ही कर दूंगा ईमेल. ठीक है, आई विल ईमेल इट आउट. ठीक है, ओके सर. सर ये जो डेडलाइन आपने एक्सटेंड की है 10 डे तक,
सर जी इसे सर काइंडली फ्राइडे तक करते हैं क्योंकि थर्सडे तक हमारे और भी नहीं सर दो इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग के भी असाइनमेंट है और भी 2-3 हैं तो उन सब ने भी एक्सटेंड करके थर्सडे के की है तो हम कह आप फ्राइडे कर दें सर इजी हो जाएगा थोड़ा। चलिए फ्राइडे कर दें। इसमें बाय द वे मैंने फिर जो एक्सटेंडेड टाइम टिपिकल मेरा 2 था ना वो मैंने 1 किया हुआ था। थर्सडे को नॉर्मल डेडलाइन थी और फ्राइडे को एक्सटेंडेड डेडलाइन थी। तो फिर आप कह रहे हैं कि फ्राइडे कर दूं और एक्सटेंडेड डेडलाइन रखूं कि वो छोड़ दूं फिर? सर वो एक्सटेंडेड डेडलाइन पेनल्टी वाली होती है ना जी पेनल्टी वाली होती है। तो सर वो पेनल्टी वाली बाद में ले जाएं फ्राइडे तक सिंपल ही रखें। अच्छा बट जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि ये आप टाइम ये समझें कि ये इस डिलीवरेबल के लिए भी फायदेमंद है, आपका फाइनल डिलीवरेबल के लिए भी फायदेमंद है। तो यू शुड नॉट यस सर थिंक ऑफ हाँ दिस कि ये डिलीवरेबल आपने कर लिया तो आप बस एक चीज खत्म होगी आपकी। ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है टिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इफ यू कम अप विद अ मोर क्रिस्पर मेथोडोलॉजी टिल फ्राइडे दैट विल हेल्प यू बेटर डू द प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग एंड इवैल्यूएशन। तो ये टाइम यस फिर सर आप सर इसीलिए जुडिशियसली स्पेंड करें आप। यस सर श्योर इसीलिए सर फ्राइडे तक कहते हैं ताकि हम ठीक है सर मैं हम कर एक दो देता पेपर हूँ, बेसिकली हम इम्प्लीमेंट ओके थैंक यू सर। फ्राइडे तक मैं कर देता हूँ। हमाद आपको एक नई असाइनमेंट अपलोड करेगा मेपर इन कपल ऑफ डेज या टुडे। तो उसमें हम कोशिश करेंगे फिर आप सिंपल ही रखें बट यू स्टिल हैव टू डू दैट। वो एक और असाइनमेंट होगी उसकी डिलीवरेबल डेडलाइन हम देख लेंगे क्या रखनी है। एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव ए फाइनल एग्जाम आल्सो। तो ये 2-3 डिलीवरेबल्स हैं अभी इस कोर्स में। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, असाइनमेंट्स में बोनस नहीं हो सकता कि जो हमारे पहले कंपोनेंट्स में मार्क्स लूज हुए हैं उसके लिए थोड़ा बहुत कवर अप हो जाए? जो पहले असाइनमेंट सबमिट हो गई हैं उनके वेटेज बढ़ा दें ये कह रहे हैं आप? नहीं मतलब कोई आप बोनस ऐड कर दें ताकि जिनमें मार्क्स थोड़े बहुत लूज हुए हैं जिन लोगों के वो कवर अप हो जाए। वो प्लान शायद किया था मेरे ख्याल से इस असाइनमेंट। हमाद आप कर रहे थे ना बोनस का क्वेश्चन? सर वो अनग्रेडेड सेक्शन डाला था उसको बोनस बना सकते हैं हम। बोनस बना दें फिर ठीक है। चलें बट ठीक है सर। उसमें यही है कि आई वुड स्टिल से कि कोशिश करें कि बहुत लंबी एक्सरसाइजेज ना हो बोथ इन टर्म्स ऑफ डेटा सेट एज वेल एज कह लें कि उसमें जो स्टेप्स हैं तो सिंपलर ये बनाएं बट दे नीड टू गो थ्रू द फुल स्टेप्स बट इट शुड बी सिंपलर। सर वो काफी एक्सप्लेन्ड है प्लस सिर्फ उसमें जो लर्निंग करेगा वो उस लाइब्रेरी की है केरास की। तो उसकी अब एक छोटी सी ट्यूटोरियल रख लें आप। आई थिंक दैट शुड बी इनफ। केरास वैसे तो एक दफ़ा सर समझ आ जाए तो वो तो आसान है बट एक दफ़ा ये समझना सर पड़ता है। ये सर वो ट्यूटोरियल जो है वो रिटर्न रखना है कि वो ऑनलाइन देना है? शुरू में तो रिटर्न दे देना, असाइनमेंट के साथ ही दे दें। कोई रिक्वेस्ट आती हैं ऑनलाइन का तो वो देख लेंगे हम। चलें ठीक है सर। सर अगर ट्यूटोरियल ऑनलाइन हो जाएगा तो उसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बिकॉज अपनी लर्निंग तो होती है बट एक दफ़ा अगर गो थ्रू हो जाए चीज़ों की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव से। बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं पड़ता है। ठीक है वो दे सकेगा, मतलब आपको ऐसे असाइनमेंट आती है आपको रिटर्न तो मिल जाएगा और उसके 1-2 दिन के बाद फिर आप अबाउट 30 मिनट्स का कुछ स्केड्यूल कर लेंगे हमाद के साथ या हमजा के साथ। बाय द वे हमजा अब नहीं आ रहा, ज्वाइन कर रहा हमको? नहीं सर उसका इंटरनेट का कोई इशू है। मैंने मेल भेजी हुई है, उसका रिप्लाई आएगा तो पता लग जाएगा। हाँ तो बट ये है कि कुछ तो एक्टिविटी वो करे ना। गुजरात में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए नेटवर्क का। चलिए सर मैं इसको कांटेक्ट करता हूँ फोन पे। चलें ठीक है। आई थिंक लेट्स रैप इट अप अनलेस के आपके पास कोई और कोई पॉइंट है या क्वेश्चन है। सर मैंने अपने प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ डिस्कस करना था। जी बताएं। सर मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें मैं बेस्ड ऑन द लिरिक्स में आर्टिस्ट क्लासिफाई कर रहा हूँ। तो सर उसमें मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैं इस कोर्स के लिए मतलब मैं इसे आगे प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं इस कोर्स के लिए कितने आर्टिस्ट चूज करूँ
और पर आर्टिस्ट मैं कितने सॉन्ग्स चूज करूँ, क्योंकि मैंने जितने भी पेपर्स पढ़े हैं उसमें उन्होंने या तो पूरे के पूरे जानरा को सिलेक्ट किया हुआ है या एक स्पेसिफिक दो से तीन स्पेसिफिक आर्टिस्ट चूज किए हुए हैं और उन्होंने पर आर्टिस्ट 80 सॉन्ग्स लिए हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन दिस कोर्स इज ए मॉडल एंड ए प्रोटोटाइप। अब प्रोटोटाइप किस डेटा पे, कितने बड़े डेटा पे चला के दिखाते हैं, या वो आई थिंक इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, एज लॉन्ग एज के आप मुझे चला के दिखा सकते हैं कि ये इस तरह चल रहा है और कुछ डिसेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो दैट शुड बी फाइन। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है फिर, यस सर। ओके फिर इंशाल्लाह फिर वेडनेसडे को, थर्सडे को फिर बात होती है। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।